Now our today's topic is erythrocytes, which we generally called RBC. Erythrocytes or RBC is a type of blood corpuscles. Here you want to study RBC, its shape, size and number, including its structure. आपको यहाँ क्या क्या पढ़ना है? शेप पढ़ना है, साइज पढ़ना है, टोटल नंबर पढ़ना है और उसका डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ना है इन ह्यूमन बॉडी. Now when you observe erythrocytes or RBC, generally called as red blood corpuscles, generally RBC is described as red blood corpuscles. When you observe the mammal, any mammal including human being, RBCs are circular, or you may call it biconcave, disc-like, enucleated means nucleus are absent during maturity. Means when you observe the immature RBC, nucleus are present, but when you observe the matured RBC, nucleus are absent. But this enucleated RBC is the characteristic feature of only mammal, except two animals are there. One is camel and one is llama, in which RBCs are न्यूक्लिएटेड. यहाँ पर आरबीसी कैसा है? न्यूक्लिएटेड है. ये ध्यान में रखिए, एमसीक्यूज में जनरली क्वेश्चन आता है. ठीक है. पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बीइंग इट इज सर्कुलर, बाइकॉन्केव, डिस्क लाइक एंड ऑलवेज इन्यूक्लिएटेड, बट इन कैमल एंड लैमा it is nucleated. Now come to second point called size. Now come to second details regarding size of RBC. When you observe size of RBC, it ranges. Particularly when you observe the thickness and diameter of RBC, the thickness in center, it is up to 1 millimicron, and in periphery the thickness of RBC is 2 millimicron, and when you observe the diameter of RBC, it is up to 7.5 millimicron. And when you observe the diagram, you will observe two bulge portions are there. In the center, it becomes narrow, while on both the corner, it get broad. दोनों कॉर्नर में देखिए ब्रॉड है. इसका टोटल जो डायमीटर है वो 7.5 मिलीमाइक्रोन है. जो बल्ज एरिया है पेरिफेरी में, उसका थिकनेस जो है वो 2 मिलीमाइक्रोन है, और सेंट्रल पार्ट जहाँ पर बल्जिंग नहीं है वहाँ पर उसका थिकनेस है 1 मिलीमाइक्रोन. दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग साइज ऑफ आरबीसी. ये डिटेल क्या शो करता है? आरबीसी का साइज शो करता है. Now come to regarding RBC production site. Come to next point called RBC production site. RBC red blood corpuscles production site. इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में RBC का प्रोडक्शन साइट कहाँ है? From where these RBC cells, erythrocytes are prepared? That you want to study. When you observe the RBC production site, the organ where RBC are produced, that organs are called as erythropoietic organ. उस organ को क्या बोला जाता है? Erythropoietic
erythropoietic organ. Erythropoietic organ. Erythropoietic organs are those organs where RBCs are produced, and these RBCs are produced in young condition, particularly in fetus stage, and after birth. You want to study production sites after birth, and you want to study this erythrocyte formation in fetus stage. In fetus stage, it is formed in liver as well as spleen. It is formed in liver as well as spleen. But after birth, it is always formed in red bone marrow. It is always formed in red bone marrow. Always formed in red bone marrow. And you called at total time required for formation of this blood, formation of this RBC is 72 hours. टोटल जो समय लगता है आरबीसी को प्रोड्यूस होने के लिए, फॉर्म होने के लिए, इट रिक्वायर अप टू 72 आवर्स. एंड लाइफ ऑफ आरबीसी सेल्स, और यू मे कॉल्ड लाइफ स्पैन, जिसको और क्या बोला जा सकता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अप टू 120 डेज. आरबीसी सर्वाइव कितने दिन करता है? 120 दिन आरबीसी सेल जो है सर्वाइव करता है. एंड द प्रोसेस इन विच आरबीसीज आर प्रिपेयर्ड और सर्वाइव अप टू 120 डे, या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज डिस्क्राइब्ड एज इरिथ्रोपोएसिस. और उस टर्म को बायोलॉजिकल टर्म क्या नाम दिया गया है? इरिथ्रोपोएसिस. इरिथ्रोपोएसिस, यू कॉल दैट टर्म एज इरिथ्रोपोएसिस. ये सब बायोलॉजिकल नेम जो है आपको ध्यान में रखना है. इरिथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. इरिथ्रोपोएसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल टर्म है जहां पर फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी जो हो रहा है, दैट टर्म इज डिस्क्राइब्ड एज इरिथ्रोपोएसिस. नाउ एवरेज लाइफ स्पैन तो अपन ने 120 डेज देख लिए. 120 डेज जो है वो इसका एवरेज लाइफ स्पैन है. द ओल्ड एंड worn out cells, old and worn out cells of RBCs are destroyed. इसका मतलब आरबीसी वर्क करने के बाद 100 से 120 दिन जिंदगी जीने के बाद ये आरबीसी सेल्स जो है वो ओल्ड हो जाते हैं. ओल्ड होने के बाद वो टीयर अप हो जाते हैं. तो जो प्रोसेस है जिसमें आरबीसी सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, वॉर्न आउट हो गए, यू कॉल दैट प्रोसेस एज हेमोलिसिस. उस टर्म को क्या बोला जाएगा? हेमोलिसिस. हेमोलिसिस इज अगेन ए बायोलॉजिकल टर्म, मेडिकल टर्म, इन विच ओल्ड आरबीसीज आर वॉर्न आउट, ओल्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड, एंड दैट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर. और वो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय जो हो रहा है वो काय में जाता है? आरबीसी लीवर में, स्प्लीन में जाता है. इसका मतलब आरबीसी के जो डेड बॉडी सेल्स है, आरबीसी के जो डेड सेल्स है, दे गो इन लीवर एंड स्प्लीन. That's why liver and spleen are described as graveyard of blood cells. इसलिए इसको क्या बोला गया है? Graveyard of blood cells. आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो गया है, वॉर्न आउट हो गया है, डेड बॉडी जो लीवर में और स्प्लीन में चले गई है, इसलिए लीवर और स्प्लीन को बोला गया है ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस. नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस. इसका मतलब ब्लड जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया था, प्रिपेयर होने के बाद उसको क्या चीज की रिक्वायरमेंट लग रही है जिससे वो आरबीसी का प्रोडक्शन करता रहे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस. Requirement of erythropoiesis. Which materials are required so that preparation of blood takes place? The material required for preparation of blood cells, including RBC erythrocytes, they are vitamin B12. क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? विटामिन B12 की जरूरत पड़ेगी. Then folic acid is required to prepare RBC cells. Then
Heme protein is required. Heme and proteins are required to prepare RBC cells, and erythropoietin hormone is required. And erythropoietin hormone is required for construction of RBC cells. Particularly this erythropoietin hormone, a type of enzyme, it is secreted by kidney. ये कौन secrete करता है? Kidney secrete करता है. It is secreted by kidney. Means the duty of kidney is to stimulate the duty of erythropoietin, which is present in kidney. It helps to stimulate, triggers red bone marrow cells. जैसे ये रेड बोन मैरो सेल्स को ट्रिगर करेगा, एक्टिव करेगा, अपने आप किडनी जो है इरिथ्रोपोइटिन को प्रिपेयर करना चालू कर देगा. और जैसे इरिथ्रोपोइटिन प्रिपेयर होना चालू हो गया, ऑटोमेटिकली द प्रिपरेशन ऑफ आरबीसी स्टार्ट्स डेवलपिंग. अपने आप प्रिपरेशन जो है आरबीसी का क्या होना चालू हो जाएगा? डेवलप होना चालू हो जाएगा. दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग इरिथ्रोसाइट्स. नाउ कम टू ए टॉपिक कॉल्ड आरबीसी काउंट. अब जो अपना टॉपिक बचा है वो क्या है? आरबीसी काउंट. नाउ कम टू डिटेल्स रिगार्डिंग RBC count. What do you mean by RBC count? What do you mean by RBC count? When you observe human being or any animal, the RBC count may get change. On an average, the total quantity of RBC in male is 5 to 5.5 millions per cubic millimeter, and when you compare it with female, the RBC count is 4.5 to 5 millions per cubic millimeter. इसका मतलब मेल और फीमेल में आरबीसी काउंटिंग जो है वो चेंज है. When you observe this counting of RBC in male and female, it get change. When there is more production of RBC count, अगर किसी इंडिविजुअल में RBC का प्रोडक्शन जो है, RBC काउंटिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, then you call that biological term as polycythemia. उस समय अपने को बायोलॉजिकल टर्म यूज करना पड़ेगा, polycythemia. You may call it as disorder. एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में RBC का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो रहा है. Some individuals are there in which RBC count get decrease. कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी है जिसमें RBC का काउंटिंग जो है वो कम पाया जाता है, डिक्रीज होता है. At that time, again we want to use one biological word and you call that biological word as erythrocytopenia. उस समय biological word को क्या बोला जाएगा? erythrocytopenia. Erythrocytopenia is a biological term in which there is less production of RBC counting. While polycythemia is again a biological term in which there is increase in RBC counting, and one instrument is used to measure it. और डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जो है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है ये काउंटिंग के लिए, एंड यू कॉल दैट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एज हेमोसाइटोमीटर. और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला गया है? हेमोसाइटोमीटर. नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज हेमोसाइटोमीटर. इट इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू काउंट आरबीसी काउंट. एक स्मीयर बनाया जाता है स्लाइड के ऊपर, और उस स्लाइड के ऊपर जो स्मीयर बनाकर इसकी काउंटिंग होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर पे. दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग आरबीसी काउंटिंग. नाउ ईच आरबीसी, वन मोर पॉइंट, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट. ईच आरबीसी कंटेन एटलीस्ट 270 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन. 270 मिलियन मॉलिक्यूल जो है एक आरबीसी सेल में अवेलेबल है. ईच आरबीसी contain 270 million molecules of hemoglobin. इसका मतलब आरबीसी सेल के अंदर में न्यूक्लियस तो नहीं है. न्यूक्लियस नहीं रहने के कारण उसके अंदर में क्या फिलअप किया हुआ है? पूरा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फिलअप किया हुआ है. और एक एक आरबीसी सेल में 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स है हेमोग्लोबिन के. इसका मतलब ये जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इट अगेन गेट डिफर इन मेल एंड फीमेल. व्हेन यू ऑब्जर्व द फीमेल बॉडी, टोटल नंबर ऑफ hemoglobin molecule is measured
up to 13 to 15 grams per 100 ml of blood. When you observe the male individual, total hemoglobin counting is up to 14 to 17 grams per 100 ml of blood. इसका मतलब मेल और फीमेल में फिर से आरबीसी की काउंटिंग जो है, हेमोग्लोबिन की काउंटिंग जो है वो वेरीज करती है, वो डिफर करती है. इज इट क्लियर? इफ ए इंडिविजुअल इज देयर इन विच द हेमोग्लोबिन काउंटिंग इज लेस देन 13 इन फीमेल एंड 14 इन मेल, उससे कम पाई गई, एट द टाइम यू कॉल दैट रेशियो ऑफ आरबीसी particularly hemoglobin is less and the individual is called as anemia. That patient becomes anemic patient. वो patient क्या बन जाएगा? Anemic patient कहलाएगा. Anemia disease होगी उसकी. And the instrument again which is used here to count hemoglobin, one instrument is there which is again used by any pathologist and you call that instrument as hemometer. और वो instrument को क्या बोला गया है? Hemometer. A special instrument which helps to count total number of hemoglobin in RBC cells. So this is details regarding a RBC. Now when you observe this RBC, one phenomena is there, you call that phenomena as hemolysis. एक और phenomena यहाँ पर पाई जाती है और उस phenomena को क्या बोला जाएगा? Hemolysis. Hemolysis is again a medical term which is used for bursting of RBC. जो काय में हेल्प करेगा? बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी. आरबीसी सेल जब बर्स्ट होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, टूट जाते हैं, एट दैट टाइम यू वांट टू यूज वन बायोलॉजिकल वर्ड कॉल्ड हेमोलिसिस. नाउ द हीम, यहां पे अपन देखे थे दो टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल आरबीसी प्रिपेयर करने के लिए लग रहे थे. हीम वो कन्वर्ट होता है आयरन में कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हेमोसिड्रीन विच इज रीयूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन, जो फिर से रीयूज होता है हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए. और ग्लोबिन जो यहाँ पर प्रिपेयर हुआ था वो कन्वर्ट होता है बाइल पिगमेंट में, और वो जो बाइल पिगमेंट यहाँ पर यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज बिलीरुबिन. दैट बाइल पिगमेंट विच इज यूज्ड हियर इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बिलीवर्डिन, these two special pigments are used here and they break up to form different types of molecules. This is details regarding RBC which you called as erythrocytes.